Started, sir. So, hi everyone. It is third lecture of moving charges and magnetism. In the previous lecture, we have discussed about, yes, bete, about the force on the moving charges. Moving charges enters in the uniform magnetic field. So the magnitude of that force is F is equals to QVB sine theta. This is a formula by which we can find the magnitude of the moving charge. If the charge enters in the uniform magnetic field at 0 degree, no force exert on it. This we have already discussed. If the charge particle enters anti-parallel, Neha, anti-parallel, that means 180 degree. So that also sine at 180 degree is equals to 0. No force exert on that particle and it moves as it is. ठीक है? अगर एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, एज इट इज वो पैरेलल मूव करेगा. अगर वो एंटी पैरेलल जा रहा है, इट मूव्स एज इट इज बिकॉज नो फोर्स एक्ट ऑन इट. और अगर फोर्स उस पे नहीं लग रही है, जीरो फोर्स एक्ट ऑन दैट पार्टिकल, सो वर्क डन इन दिस केस इज ऑल्सो जीरो. क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स जीरो है तो वर्क डन पे कितना होगा? जीरो होगा. दैट्स व्हाई नो फोर्स एक्ट ऑन दैट charged particle. If the maximum force exert on it, then we have discussed in the yesterday's class that maximum force exert on it, that means when the charged particle enter in the uniform magnetic field perpendicularly, theta is equals to 90 degree. We have discussed na bete. ठीक है? When theta is equals to 90 degree, then force is equals to QVB sine 90 degree, and sine at 90 degree is equals to 1. So maximum force exert on it, it's QVB, which provide the charged particle necessary centripetal force due to which it follow the circular path. है ना? This we have discussed ना बेटे. ठीक है? So in the uniform magnetic field, we represent the magnetic field with cross. तो क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है? कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पेज के अंदर की है, वो या बोर्ड के अंदर की है. एंड डॉट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स. ठीक है ना? सो इफ द चार्ज पार्टिकल्स मूव्स perpendicularly to the uniform magnetic field, then maximum force exert on it, which provide the charge particle necessary centripetal force. That's why it follow the circular path. है ना? Maximum force लगेगी उस पे, क्योंकि वो perpendicularly magnetic field में enter कर रहा है, theta is equals to 90 degree पे. इसलिए maximum force की वजह से maximum force उसको necessary centripetal force देगा, mv square by r. That's why it moves in a circular path. So the angle between force and displacement is 90 degree. ठीक है? मैक्सिमम फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलेगी, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि विच आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कीप कांस्टेंट, विच आर वेरिएबल. वी डिस्कस्ड ना इन यस्टरडेज क्लास. सो व्हाट अबाउट स्पीड, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट रिमेन्स कांस्टेंट. दिस वी हैव डिस्कस्ड ना. ठीक है? व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv square. We can put the value of velocity when we equate these two, Fm and Fc, maximum magnetic force and the centripetal force. It's mv square by r. ठीक है? mv square upon r. These are the two forces. This
force provide the charged particles this necessary centripetal force. So when we equate these two, qvb is equals to mv square by r, we have the value of r, radius कितनी होगी, r is equals to mv over qb. ठीक है, this is the expression for r, or the expression for velocity, keep it v r q b over m. ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस v over here we can find the kinetic energy, because kinetic energy is a scalar quantity, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, that's why the kinetic energy remains constant, है ना, remains unchanged. This is a question in your paper 2 ना, था ना ये क्वेश्चन कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो कांस्टेंट रहती हैं, कौन सी वेरिएबल होती हैं. सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन बेटा, ये व्हाट अबाउट वेलोसिटी, व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल. ठीक है, व्हाई इट बिकम्स वेरिएबल, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है. अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही करेगा, बट एट एवरी पॉइंट इट डायरेक्शन चेंजेस, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन में चेंज आता है. ठीक है, और देयर आर 3 वेज इन विच देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी. या तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो, चेंज इन द डायरेक्शन ओनली. सेकंड, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ओनली. थर्ड, चेंज इन बोथ साइमल्टेनियसली, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी से वेलोसिटी इज वेरिएबल. वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, है ना, 5 मीटर पर सेकंड यूज करेंगे, दैट्स व्हाई इट बिकम्स कांस्टेंट. वेट वेट वेट, व्हाट अबाउट मोमेंटम, momentum p, it is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction. so direction, क्योंकि velocity यहाँ पे consider करते हैं, p is equals to mv में v जो है वो magnitude और direction दोनों ही होता है उसके अंदर. that's why because velocity is variable, that's why momentum we consider as variable. तो momentum change होता है due to the change in the direction of the particle. understood? ठीक है, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी. हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, वेदर इट इज अर्थ और एनी प्लेनेट और एनी सैटेलाइट या एनी अदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity is variable. Velocity is variable, that means velocity is changing with respect to time, and change in the velocity according to time, with respect to time, is known as acceleration. So what we call this, beta, uniform circular motion, accelerated motion. हमेशा गोल घूमने वाली चीजों का मोशन कैसा होता है, accelerated motion होता है. that means they have some acceleration. अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सो वी कॉल इट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है ना, वी कॉल इट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अंडरस्टूड? व्हाट अबाउट द वर्क डन, 0. ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 0. व्हाई 0? बिकॉज इन दिस द एंगल बिटवीन F एंड S, वर्क डन इज इक्वल्स टू, होता कितना है वर्क डन, dot product of force and displacement, that is Fs cos theta. in this circular motion या uniform circular motion, angle between force and displacement is 90 degree and cos 90 is equals to 0. that's why work done is equals to 0, right? तो चाहे चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे मूव कर रहा है, 180 डिग्री पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, in all these cases work done is equals to 0. Understood? So this is how the physical quantities when there is circular motion, when maximum force exert on the charged particle and at every point it keep changes its direction. Understood?
Next case we have fourth case in which the charged particle enters in uniform magnetic field at any angle except 0 degree, 180 degree and 90 degree. ठीक है, यानी कि 0, 180 और 90 डिग्री को छोड़कर अगर और किसी भी एंगल पे 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, कितने भी डिग्री पे अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, देन विच पाथ इट फॉलो बेटा? सो इट फॉलो हेलिकल पाथ. ठीक है, हेलिक्स या हेलिकल पाथ. ठीक है, this is the angle between magnetic field and velocity vector. So this is the path it can follow in the uniform magnetic field. ठीक है ना, it follow the helical path, यानी कि circular motion करते हुए ये आगे propagate करेगा, right? ठीक है, force क्या लगेगी उस पे? Same, it's QVB sin theta. थीटा वो भी जो भी जिस भी एंगल पे वो एंटर कर रहा है, 30 डिग्री पे एंटर कर रहा है या 60 डिग्री पे एंटर करता है, you have to put the value. But what you have to remember one thing बेटे, कि आपको ये देखना है कि वो जो एंगल होगा वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए. अगर एक्सिस के अक्रॉस दे रखा है तो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है ना. नेक्स्ट वी हैव here we end the topic force on a moving chart. So there in this we have studied about the 4 cases. First case, theta is equals to 0 degree, force is equals to 0. Theta is equals to 180 degree, force there is also 0. Third, theta is equals to 90 degree, maximum force exerted at that time when theta is equal to any angle except 0, 90 and 180. Then there is some force act on it. ठीक है, you have to put the value of that theta. Now tell me, before coming to the next topic, now tell me one thing. If a charge particle which is at rest, kept in uniform magnetic field, then what happened to it? Is there any force act on it? अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जो कि रेस्ट में है, is there any force act on it? It is kept in uniform magnetic field B. Tell me, is there any force act on it? No, no. Why? Because it is at rest. It has only the electric field around it. It produces electric field. Electric field हमेशा रहेगा whether the charge is at rest or in motion. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग. जब चार्ज मोशन में होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. दो अलग अलग फील्ड हो गए, दे कांट इंटरेक्ट विद ईच अदर. इंटरेक्शन कब होगी? व्हेन दिस चार्ज इज आल्सो इन मोशन. ठीक है, सो नो फोर्स एक्सर्ट ऑन इट. तो एक तो ये रीजन हो गया, दिस इज आल्सो द मेन रीजन. दूसरा हम फॉर्मूले से देख सकते हैं. What is the formula to find the force on a charged particle enters in a magnetic field? ये kept in a magnetic field. F is equals to QVB sin theta, जो अभी हमने केसेस किए हैं. So it is at rest. That means its velocity is equals to 0. ठीक है. So when the charged particle is at rest, its velocity is equals to 0. When we put the value of velocity in the formula, so F is also 0. तो ये फोर्स 0 हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, ये मोशन में नहीं है.
इट डजंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. जब तक दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे दे कांट इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना. एक चार्ज और एक मास हो तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, नहीं होगी ना बेटे. ठीक है, सो अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वी हैव बायट सेवर्ट लॉ. सो बायट सेवर्ट लॉ इज अबाउट इफ वी हैव a conductor of L length dl I dl, ठीक है, R. So Biot Savart law is a very important law which is used to find a small amount of magnetic field in a small current carrying element. पूरे के पूरे एक कंडक्टर है हमारे पास L लेंथ का, पूरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए तो हम डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. बट अगर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट में पूरा कंडक्टर है उसका बहुत स्मॉल पार्ट है डीएल, करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी कि आई करंट फ्लो कर रहा है एक छोटे से पार्ट में डीएल में, तो इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से एट स्मॉल डिस्टेंस आर, एक पॉइंट है पी, यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. डीबी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है किसका, बायट सेवर्ट लॉ का. ठीक है, सो बायट सेवर्ट लॉ is used to determine the direction of, yeah, the magnitude and direction of, determine the direction and magnitude of small magnetic field, small magnetic field dB due to a small current carrying element, current carrying element. ठीक है, पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट आईडीएल करंट कैरिंग एलिमेंट. ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. So it is used to find that small dB. Understood? So according to this law, if we have a L length current carrying conductor, current carrying element IDL, we have to find the magnetic field at point P, which is R distance away from this current carrying element. इस point पे magnetic field find करना है इस current carrying element की वजह से. So you have to write all these things. So ये जो dB होगा, what is the magnitude of this dB? It is directly proportional to the current flowing through the conductor. ठीक है, equation number 1. This dB is directly proportional to the small conductor, length of this conductor dl. This dB is directly proportional to the sin theta. ठीक है, जो भी ये थीटा एंगल बनाएगा विद द आर, ये जो करंट dl है ये कितना एंगल बना रहा है विद द आर, so sin theta, sine of the angle of this, and dB is inversely proportional to the distance square. When we combine these four equations, what we have, dB is equals to, dB is directly proportional to IDL sin theta over r square. When we remove this proportionality sign, what we have, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में किया था कि द कूलम्ब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर. देयर वी हैव कांस्टेंट k, क्या आया था ना बेटे, हियर आल्सो वी हैव कांस्टेंट k, बट यहाँ पे k, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट हियर ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज की स्टडी कर रहे थे एट रेस्ट, बट यहाँ पे हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं इन मोशन, तो यहाँ पे जो k होगा दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन मैग्नेटिज्म. ठीक है, सो वी हैव k I dl sin theta over r square. When we remove this proportionality sign, ठीक है, we have to remove this proportionality sign, कि k कांस्टेंट आ गया ना, एंड k की वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta over r square. This is a scalar form of Biot Savart law. In vector form,
वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बेटे, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, इट्स साइन थीटा नहीं आएगा, इट्स dl क्रॉस r, ठीक है, और नीचे हो जाएगा इट्स r क्यूब, राइट. So this Biot Savart law, the magnetic field, small magnetic field vary inversely with the r square, right मुस्कान, है ना. This vary inversely with the r square, यानी कि जितना आप करंट कैरिंग एलिमेंट से दूर जाओगे, इस करंट कैरिंग एलिमेंट से जितना r दूर होगा, the magnitude of the magnetic field becomes decreases, कम होता जाएगा ना, ठीक है. So this is a vector form of Biot Savart law. So what is a formula for the Biot Savart law? Mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square. In the vector form, it's r cube. What is the value of this mu naught? What is mu naught? What do we call this mu naught? It's permeability. Permeability या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम इसको कहते हैं. जैसे परमिटिविटी था ना, permittivity shows the electrical behavior of the conductors. Similarly, permeability shows the magnetic behavior of the conductors, कि उनमें से magnetic field lines कितनी पास हो सकती हैं, किस extent तक पास हो सकती हैं, that is permeability. And its mu naught value is equals to 4 pi into 10 raised to the power minus 7. 4 pi into 10 raised to the power minus 7. So जब अगर हमारे पास mu naught upon 4 pi है, then म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. सो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 अपॉन दिस 4 पाई. सो 4 पाई इज कैंसिल आउट विद दिस 4 पाई. अगर हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो, देन द वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 7, ठीक है. सो दिस इज अ बायट सेवेट लॉ. नेक्स्ट वी हैव द न्यूमेरिकल. अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ direction carries a current of 8 ampere from south to north. South to north, in this direction, upward direction, the current goes, which is 8 ampere. ठीक है. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast. Northeast, इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, ठीक है. पूरा कितना दे रखा है कंडक्टर हमारे पास, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर. पॉइंट जो R है दैट इज 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि यहाँ पे एक P पॉइंट है फ्रॉम द पीस. यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. सो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, R डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. स्मॉल हो गया ना बेटे, 1 सेंटीमीटर है, बहुत छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो वी यूज द बायट सेवेट लॉ. सो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin theta over r square. Find it by putting all the values. What are the values? R कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, that means 200 into 10 raised to the power minus 2, यानी कि 2 मीटर, ठीक है. लेंथ dl या l कितना होगा, it's 1 centimeter, that means 10 raised to the power minus 2 meter. Current we have 8 ampere, ठीक है. एंड थीटा कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में है, सो एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है. थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. नाउ पुट द वैल्यूज इन द बायट सेवेट लॉ. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin theta over r square. Mu naught by 4 pi, it's 10 raised to power minus 7 into current is 8 ampere. dl is 10 raised to power minus 2, it's sin 45 degree, ठीक है, upon r square, ठीक है. r square we have given 2 meter, so 2 square. Solve it. You have 4, it will be cancel out, 4 है ना, 4 it's 2, so 2 into 10 raised to power minus 9 upon 1 upon root 2, ठीक है. so कितना होगा, it's
1.414 into 10 raised to the power -9 टेस्ला। ठीक है, ठीक है। सो राउंड ऑफ ले तो 1.4 ही हो गया। नेक्स्ट, एन एलिमेंट, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स आई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, is placed at the origin and carries a large current of 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? ठीक है, कितना देर का हमारे पास कंडक्टर की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस में एक पॉइंट P है यहाँ पे, जो कि कितना है, इट्स 0.5 मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगेन हमारे पास 1 सेंटीमीटर कंडक्टर है, इसका मतलब डीएल गिवन है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। सो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वी यूज बायट सैवर्ट लॉ। सो डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल sin theta over r square. Put all the values. ठीक है, what we have given, dl कितना given है, 1 सेंटीमीटर, that means 10 raised to power -2 मीटर। r कितना डिस्टेंस अपार्ट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, 0.5 मीटर। करंट कितना है, करंट 10 मीटर। ठीक है, हमें y एक्सिस में फाइंड करना है, सो थीटा इज 90 डिग्री। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। पुट ऑल द वैल्यूज। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 raised to power -7 dl, i इज, i कितना था, 10, और डीएल है 10 raised to power -2, 10 इंटू आई करंट हो गया 10, डीएल हो गया 10 raised to power -2 साइन 90 डिग्री। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर कितना था, 0.5 है ना। सो डीबी इज इक्वल्स टू साइन 91 हो जाएगा, यहाँ से पावर्स कितनी हो जाएंगी, -9 और एक ये -8। ठीक है, सो 10 raised to power -8, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा कितना, 0.25। ठीक है, दैट मीन्स वापस ऊपर जाएगा तो 4 है ना, कैंसिल आउट हो गए, तो 4 इंटू 10 raised to the power -8 टेस्ला। ठीक है, so this is how we can find the magnetic field in a very small current carrying element. ठीक है, next we have the magnetic field due to a long straight current carrying conductor. This is the application, this is the first application of Biot Savart law. We have a long straight wire carrying I current, we have to took a small dl, ठीक है, IDL current carrying element, जिसकी वजह से r distance apart there is a p point, at p point we have to find the magnetic field due to this current carrying element, small current carrying element. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ विद द डिस्टेंस r, थीटा एंगल एट द पॉइंट p। यहाँ पे हम एंगल लेंगे phi splits into 2 components, phi 1, this is phi, ये 2 components में स्प्लिट हो गया, मिडल लाइन से ऊपर वाला phi 1, नीचे वाला phi 2, एंड मिडल से ये जो डिस्टेंस है दैट इज a। ठीक है, सो नाउ यूजिंग द बायट सैवर्ट लॉ, सो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta over r square। ठीक है, इन द ट्रायंगल QOP, in the triangle QOP
this is perpendicular, so this is 90 degree angle, this is theta, this is phi. So sum of the angles, all the angles of a triangle is equals to 180 degree, है ना. So कौन कौन से हमारे पास 90 है प्लस थीटा है प्लस फाई है, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस फाई, लिख सकते हैं. थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाई. हमारे पास यहाँ पे बायट सेवर्ट लॉ में क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई एंड साइन 90 डिग्री माइनस फाई इज इक्वल्स टू, चेंज हो जाएगा बेटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई. ठीक है, तो साइन थीटा की जगह इन दिस फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, कॉस फाई. ठीक है, इन द सेम ट्रायंगल इफ वी फाइंड कॉस फाई, यहां से अगर हम cos फाई निकालें तो cos फाई इज इक्वल्स टू एंगल जो भी होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दिस विल बी बेस, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन दिस डिस्टेंस या हाइपोटेनियस, सो a अपॉन r. ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड cos फाई, तो cos फाई कितना होगा, cos फाई इज इक्वल्स टू a अपॉन r. अगर हम यहां से r फाइंड करें सो a अपॉन cos फाई. ठीक है, हमारे पास बायट सेवर्ट लॉ में अपॉन r स्क्वायर है, सो देयर वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ r. ठीक है, कुछ भी इक्वेशन पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट किया है, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3. देन वी हैव टू फाइंड tan phi इन द सेम ट्रायंगल. ठीक है, tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ये l और बेस हो गया हमारे पास a, तो l अपॉन a. सो tan phi इज इक्वल्स टू l अपॉन a. रीअरेंज इट, l इज इक्वल्स टू a tan phi. नाउ डिफरेंशिएट फ्रॉम द बोथ साइड्स, differentiate the above equation from both sides. But we have dl is equals to, we have to differentiate it with respect to phi. So a tan phi is equals to secant square phi d phi. ठीक है, तो tan phi that means secant square phi. So this is the value of या formula for dl, equation number 4th. It will be equation number 4. ठीक है, so we have all the values, the value of dl, the value of r and the value of sin theta. So we have to put all these values in this Biot Savart Law formula. ठीक है, so put all the values. So dB is equals to mu naught upon 4 pi as it is, I as it is, dl, dl कितना था, dl कितना था, what happened बेटे रिया, dl कितना था बेटे, it's a secant square phi d phi, है ना, phi d phi. r we have, r कितना था, a अपॉन cos phi. ठीक है, so a अपॉन cos phi, then sin theta cos phi, right, cos phi का secant square, it will be cancel out. ठीक है ना, cancel out ना बेटे, something is left, a upon cos phi, it goes up, sin theta is also cos phi. Cancel out na these. So dB is equals to mu naught upon 4 pi a with a, mu naught upon 4 pi I
phi d phi we have left, d phi we have left na, d phi we have left. Something angle will also be left. It will be r square. r square था यहाँ पे. We have only putting the value of r. हमने सिर्फ r की वैल्यू पुट की है, तो स्क्वायर होके तो इट गॉस स्क्वायर ना. ठीक है. सो यहाँ से एक a कैंसिल आउट होगा और वहां पे एक cos phi बचेगा. वी हैव द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है. नीचे हमारे पास एक a वैल्यू है एंड हियर वी हैव cos phi d phi. ठीक है ना. क्यूब ओवर हियर ना, तो एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक हमारे पास बचता है. इसको हम एज इट इज रख लेते हैं, cos phi. राइट. नाउ इंटीग्रेट इट. dp इज इक्वल्स टू फ्रॉम माइनस 5(1) टू माइनस टू प्लस 5(2). ठीक है. कौन सा है माइनस का हमारे पास? 5(2) माइनस का है. ठीक है. सो 5(2) माइनस का है ना, और ये प्लस का. सो फ्रॉम 5(1) टू 5(2). ठीक है. वैसे नीचे वाला 5(1) होना चाहिए. this will be 5(1), this will be 5(2). ठीक है. So 5(1) we have of negative and it will be positive. So minus 5(1) to 5(2) we have to integrate the equation mu naught upon 4 pi I upon a cos phi d phi. ठीक है. cos phi d phi. ठीक है. All the things which are constant came out. So b is equals to mu naught upon 4 pi a I. We have to integrate with respect to phi. तो cos phi is equals to, ठीक है, माइनस या प्लस. ठीक है. So it's become sin phi. We have to put the limits phi1 to phi2. After putting the limits, the value of magnetic field, Neha, the value of magnetic field is equals to mu naught upon 4 pi a I as it is sin. So sin phi2 minus, ठीक है, एक नेगेटिव ये हो गया, एक अपर लिमिट पुट करने के बाद आता है तो इट बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है. सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 pi a. रीअरेंज देम. sin phi1 प्लस sin phi2. ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ फाइनाइट वायर. ठीक है. ये किसकी है बेटा एक्सप्रेशन? फॉर फाइनाइट वायर. अगर हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फाइनाइट वायर है एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, सो विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज? दिस फॉर्मूला. ठीक है. सो साइन phi1 प्लस साइन phi2 mu naught I upon 4 pi a. Now there are some special cases about it. What are those special cases? If phi1 and phi2 both are 90 degrees, that means अगर हम दोनों की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दें, then what happen to this formula? अभी जो हमने फाइंड किया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a. साइन phi1 को भी 90 डिग्री पुट कर दिया, साइन phi2 को भी 90 डिग्री पुट कर दिया, देन वी हैव b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a. साइन 90 भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2. दैट मीन्स 2, this will be cancel out. So what is the expression? Mu naught I upon 2 pi a. ठीक है. अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसके अगर हम मिडल की बात कर रहे हैं, यानी कि वो पॉइंट P जो है वो कहीं मिडल में है, तो यहां से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? दोनों
90-90 हो जाएंगे, ठीक है। सो कितना होगा मिडल के अंदर, अगर वो ये था केस फाइनाइट वायर का, ठीक है, दिस इज फॉर फाइनाइट वायर, एंड इन द स्पेशल केस इफ वी हैव दैट इनफाइनाइट वायर, तो कितना होगा, दिस इज द स्पेशल केसेस फॉर द इनफाइनाइट वायर, यानी कि बहुत लॉन्ग है और उसके केस में हमें मिडल में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि मिडल में वो r डिस्टेंस अपार्ट एक p पॉइंट है जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो दिस इज फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इन द मिडल, ठीक है, इन द मिडल वी हैव टू फाइंड द बी मैग्नेटिक फील्ड, अंडरस्टूड। इसलिए हमने दोनों जो फाई थे उनको कितना पुट कर दिया, 90-90, यहां जो फाई थे ना दे बिकम्स 90-90 क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। नेक्स्ट, अगर हम एंड्स की बात करें, ठीक है, यानी कि पी पॉइंट हमारा कहीं यहां हो, एंड्स पे हो, तो एंड्स पे वी हैव टू पुट वन एंगल एज 90 डिग्री एंड वन एट 0 डिग्री, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field at the ends of infinite long wire, infinite long wire, ठीक है। एंड्स की अगर हम बात करें, सो phi 1 90 डिग्री एंड phi 2 as 0 डिग्री। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, B is equals to म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, एक को 90 डिग्री पुट कर दिया, एक को 0 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है, साइन 0 पे 0 हो जाएगा, दिस बिकम्स 1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। सो इन द गिवन क्वेश्चन ये देखना कि एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है या इन द मिडल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर मिडल में पूछा जा रहा हो सो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A यूज करोगे, अंडरस्टूड ना बेटे। और फाइनाइट वायर है तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A कहाँ गई, साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर। इट हैज 3 केसेस ना, फाइनाइट में दिस इज अ फॉर्मूला, इनफाइनाइट अगर वायर है बट आपको मिडल में फाइंड करना है, सो मिडल में याद रखो, जैसे कोई भी वायर होती है तो मिडल में हम कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर होता है, तो 2 पाई, डायमीटर क्या होगा 2 पाई, ठीक है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, अंडरस्टूड। So here we end today's lecture, and tomorrow's lecture we have discussed about the remaining applications of Biot Savart Law, right?